हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7th का इंग्लिश का मिड टर्म का जो प्रैक्टिस पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। सेशन है 2025 एंड 26। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए दिया गया है, रीडिंग है, जिसके अंदर पैराग्राफ दिया गया है। पहले से रीड करते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 7 मार्क्स का है ये। द चीता, द फास्टेस्ट एनिमल on land. The cheetah is the one of the most fast-racing animal in the world, known for the being the fastest land animal. It can reach speed up to 100 km per hour, but only the short distance. Its slender body and long legs and the flexible spine help to achieve this incredible speed. Cheetahs are found mostly in part of Africa and small population in Iran. In recently year, India has also begun to project introduce cheetahs into certain wildlife sanctuaries. Reserves. Their golden coat with black spots help them to blend into the tall grasses, making it easier to hunt prey. Unlike lion or tiger, cheetahs hunt mainly during the day, using their excellent eyesight to spot animals like gazelles and the hares. They really own speed rather than strength and chasing down their prey in quick bursts. Sadly, the cheetah population is declined due to the habitat loss, hunting and lack of prey. Wildlife organizations are working hard to protect them throughout the conservation programs. Cheetahs play an important role in maintaining the balance of the ecosystem by controlling the population of herbivores. Protecting them then ensure the health of grassland and savannas. The cheetah's beauty, grace and speed make it the true wonder of the animal kingdom. यहाँ पूरा पैराग्राफ दिया है। अब हम इसके क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ चीता कैन रीच। तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ में से आंसर आपको मिल जाएंगे। व्हाट फीचर ऑफ द चीताज हेल्प इन द ब्लेंड इनटू द टॉल ग्रास। तो गोल्डन कोट विद ब्लैक स्पॉट, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चीता यूजली हंट कब किया कहता है, ड्यूरिंग द डे हो जाएगा। सी आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। द वर्ड ब्लेंड इन द पैसेज मीन, ब्लेंड का मीनिंग क्या है, मिक्स एंड मर्ज स्मूथली। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट वट एवर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। चीताज आर नॉट फाउंड इन ईरान, उनमें लिखा गया है चीता भी फाउंड होता है, तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। मेंशन टू मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन द चीताज पॉपुलेशन। तो पैराग्राफ में से देखते हैं हम आंसर। देखो एकदम आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर यहाँ पर लिखा गया है। देखो ये रहा, द चीताज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन ड्यू टू द हैबिटेट लॉस, हंटिंग एंड लैक ऑफ प्रे। तो ये हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड, यहाँ पे एक और पैराग्राफ दिया गया है। यहाँ पर देखो लिखा गया है हुमायूं टॉम। ये पैराग्राफ भी 7 मार्क्स का है। हुमायूं टॉम इज लोकेटेड इन दिल्ली इन वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल मोमेंटम ऑफ इंडिया। इट वॉज बिल्ट इन 1570 बाय द हमीद बानो बेगम, द विडो ऑफ द मुगल एम्परर हुमायूं। दिस इज मैग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द फर्स्ट गार्डन टॉम इन द इंडिया इन द fine example of the Mughal architecture. Its design later inspired the construction of Taj Mahal. The tomb is made of red sandstone with white marble with a large central dome surrounded by the beautiful garden, fountain and pathway. The chargeable style garden divided into the 4 parts reflect present and the influence and the symbolize paradise. In 1993, Humayun tomb was declared the UNESCO World Heritage Site because it is cultural and architecture importance. Every year, thousands of visitors, some of the admit the beauty and learn about India's glorious history. The chart below show the category of the people who visit the tomb. Domestic tourism from the largest group, followed by the foreign tourism. School groups often visit to study history, while a small number of the researchers come to explore momentum to the depth. Humayun tomb is not only a symbol of love and respect, but also a reminder of the India's rich heritage. तो यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, यहाँ पे दिया गया है। देखो इसके बारे में कुछ बताया गया है, आप देख सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हमें समझकर आंसर करना है। हु बिल्ड हुमायूं टॉम्ब। तो हमीदा बानो बेगम, बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इन विच ईयर वॉज हुमायूं टॉम्ब बिल्ड। तो कितना था, 1570 में। देखो यहाँ पे लिखा गया, हम उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा देख लेते हैं। देखो 1570, 1570 है, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी आंसर। ए आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द चार्ल्स बेगम स्टाइल गार्डन इन डिवाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इन व्हाट डज द पाई चार्ट इन द पैसेज रिप्रेजेंट। पाई चार्ट में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है,
तो देखो पाई चार्ट में क्या है, यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं। पाई चार्ट में विजिटर लिखा गया है साफ में कि क्या है यहाँ पे, विजिटर ऑफ हुमायूं टॉम्ब। तो यहाँ पे बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, विजिटर ऑफ हुमायूं टॉम्ब। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। उसके बाद हुमायूं टॉम्ब वाज डिक्लेयर्ड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर। तो कौन से ईयर में डिक्लेयर हुआ है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा बार बार घुमाना पड़ रहा है। तो 1903 में, यहाँ पे आपको लिखना होगा 1993 में। तो कौन से ईयर में डिक्लेयर हुआ है, 1993 के अंदर। व्हाई इज हुमायूं टॉम्ब कंसिडर्ड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो देखते हैं इसका आंसर भी। देखो यहाँ पे आ जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। देखो नेक्स्ट क्या कहा गया, अब ग्रामर का पोर्शन आ रहा है। यहाँ पे क्या करना है, राइट स्टोरी लिखनी है 100 to 120 वर्ड्स में। यहाँ पे एक आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया गया है, अ डॉग फाउंड अ बोन, क्रॉस अ ब्रिज, सा हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर। इस तरीके से दिया है। इसको हमें क्या करना है, एक स्टोरी बनानी है। इसके और में दिया गया यूजिंग द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट विद द स्टोरी। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया गया, ड्यूरिंग अ ट्रेन जर्नी एन ओल्ड वुमेन वॉज कैरिंग ए हैवी बैग, नो बडी कैन फॉरवर्ड टू द हेल्प फॉर द एक्सेप्ट। इन दोनों की हमें स्टोरी बनानी है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हमने टाइटल लिखा द ग्रीडी डॉग। वंस अ हंग्री डॉग फाउंड इन द juicy bones, feeling proud he held in the tightly in his mouth and decided to find quiet place to enjoy it. On his way home he had to cross a narrow bridge over a flowing stream. He crossed, he glanced into the water and saw another dog staring back at him and what looked like a bigger and juicier bone. Greedy dog looked over him and he completely forgot that it was his own reflection. उसका खुद का ही रिफ्लेक्शन था। He thought, I want that bone. तो मुझे वो bone भी चाहिए। He sneered and barked at the other dog to snatch the bigger bone. The moment the opened his mouth, his own bone fell into the stream and splashed and was splashed away by the current. The greedy dog was left with nothing the regret. मतलब उसके सिर्फ रिग्रेट के अलावा उसके पास में कुछ भी नहीं था। Greed lead to loss. Greed से क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। नेक्स्ट जो स्टोरी है, दो स्टोरी में से एक स्टोरी करनी थी। अ हेल्पफुल हैंड। ड्यूरिंग अ क्राउडेड ट्रेन जर्नी एन ओल्ड woman struggled to lift her heavy bag into a luggage rack. She looked around helpless, but everyone was busy on their phone and pretending to sleep. Just she was about to give up and a young man no older than 12 stood up, खड़ा हुआ एक बच्चा उनके अंदर से। Then grandmother, let me help you. He see that with a warm smile. He carefully took the bag and with a little efforts hoisted into the rack. The old woman was immensely relieved and blessed him into the kindness. The boy's simple act to the shamed and other passengers who could not meet to his eye. It was a reminder that kindness costs nothing but means everything. इस तरीके से आप इन जो वर्ड्स दिए हैं इनसे आपको एक स्टोरी बनानी हो, एक स्टोरी कंफर्म है आपकी आएगी, तो लाइन से लाइन बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं एक पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पर देखो माय फेवरेट बुक और माय फेवरेट स्पोर्ट, इन दोनों में से किसी एक पर आपको पैराग्राफ लिखना है। हिंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहले हम देखते हैं माई फेवरेट बुक इज़ हैरी पॉटर। आप कुछ भी लिख सकते हैं। द फिलोसफर स्टोन बाय द J.K. Rowling. It is a story about the young boy Harry Potter who discovers his 11th birthday in his famous wizard. He is whisked away to the Hogwarts school to the wizards and the worldly where he make friends, learn magic and uncovered a great mystery. I love this book in magical world, brave characters like Harry, Hermione and the Ron. It is themes of friendship and courage. I have read the countless time. It inspired me to be brave in the face of difficulty and always entertain me with the thrill plot. तो इसके अलावा कुछ और फेवरेट बुक के बारे में पढ़ सकते हैं आप। साइंस की बुक के बारे में लिख दीजिए, किसी भी एक चीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं माई फेवरेट स्पोर्ट के बारे में है। My favorite sport is cricket. I like it because it is a fun team game that teaches a teamwork, strategy, keep us a physical fit. I play cricket every evening in the playground near my house with my friends. My favorite cricketer is Virat Kohli because his dedication, aggressive playing style and never give up attitude. Playing cricket benefit me greatly. It keep me healthy, active, teach me discipline and help me build strong friendship with my teammates. देखते हैं यहाँ पे अब ग्रामर का पोर्शन दिया जा रहा है। रिपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गर्ल सेड आई एम प्लेइंग विद अ बॉल। शी सेड दैट शी वॉज प्लेइंग विद अ बॉल। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच आपको आनी चाहिए। इसमें हम पास्ट टेंस में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो शी सेड शी वॉज प्लेइंग विद अ बॉल। इसके बाद रिपोर्ट द फॉलोइंग। ही सेड कैन आई कम टू मीट यू। ही आस्क्ड इफ आई कैन
कम टू मीट यू। देखो जब क्वेश्चन मार्क आता है, कैन आता है, तो हम इफ का यूज करते हैं, तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, देखो क्या कहा जा रहा है, ही सेड कैन आई कम टू मीट यू, तो ही आस्क्ड इफ ही कुड, पास्ट टेंस होना चाहिए था, कैन की जगह कुड आना चाहिए था, ही कुड कम टू मीट मी, है ना, ये आएगा, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का बी आएगा, सेकंड का सी आएगा। थर्ड देखते हैं क्या है, रिपोर्ट स्पीच है। रीना सेड टू मी व्हाई यू आर लिविंग, तो शी आस्क्ड व्हाई वाज आई लिविंग, तो ए शी आस्क्ड मी आएगा। देखो शी आस्क्ड मी, रीना है ना, शी आस्क्ड मी व्हाई वाज आई लिविंग, तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट पंचुएशन सेंटेंस। ओके, क्या है, आई लव टू ईट चॉकलेट्स, टॉफी, आइसक्रीम एंड कैंडीज, तो ए ही ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगा। यहाँ पे कॉमा दिया, लास्ट में एंड दे दिया। जब भी ऐसा होता है तो जितने सेंटेंस, जितने भी वर्ड्स दिए जाते हैं उनके बीच में कॉमा आता है जो एक जैसे से होते हैं, और लास्ट के बीच में एंड आता है। ठीक है, लास्ट देखते हैं। इसके बाद क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, विल यू लाइक टू हैव टी, यहाँ पे पंचुएशन लगानी है, तो विल यू हैव टू लाइक अ टी, विल यू हैव लाइक टू टी, तो देखो क्वेश्चन मार्क लगेगा, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगेगा तो बी आंसर, सेंटेंस सेम है बट जो पंचुएशन है उस पर ध्यान देना है, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो आइए देखते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है। फर्स्ट में देयर आर डैश स्टूडेंट इन लाइब्रेरी टूडे, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, मैं सर्कल कर देती हूँ उसको, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी टूडे, द रिवर वॉज डैश देन वी एक्सपेक्टेड, द रिवर वॉज डीपर देन दिया ना, तो सेकंड आती है, द रिवर वॉज डीपर देन वी एक्सपेक्टेड, दिस इज डैश ड्रेस आई हैव एवर बोट, दिस इज द मोस्ट, दा दिया है तो दा के बाद मोस्ट लगता है, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रेस आई हैव एवर बोट, प्लीज गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, माई हाउस इज डैश टू द स्कूल देन योर्स, तो कंपेरिजन हो रहा है दो के बीच में, माई हाउस इज नियर टू द स्कूल देन योर्स। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे कॉलम ए और बी को मैच करना है, तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पेशेंट, तो क्या हो जाएगा, पेशेंट का यहाँ पे हो जाएगा इनपेशेंट, यहाँ पे इम्पेशेंट आ जाएगा। तो देखो क्या है, पहले पेशेंट का क्या हो जाएगा, इम्पेशेंट, सी आंसर हो जाएगा। काइंड का क्या होगा, काइंड का हो जाएगा डिसकाइंड। रिस्पेक्ट का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, अनकाइंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, देखो पेशेंट का हो जाएगा इम्पेशेंट, रेगुलर का हो जाएगा इर्रेगुलर हो जाएगा, रिस्पेक्ट का डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, और काइंड का अनकाइंड हो जाएगा। ये यहाँ पे मैचिंग होने हैं, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस इन द असर्टिव क्वेश्चन इंटेरोगेटिव, इसमें हमें क्या करना है, एनी थ्री क्वेश्चन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन क्या है। तो देखो सबसे पहले, व्हाट टाइम विल बी लीव फॉर जयपुर, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इंटेरोगेशन की जा रही है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव। सेकंड, आई हेट पीपल हु लाई, तो ये एक स्टेटमेंट है तो असर्टिव हो जाएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा असर्टिव। प्लीज़ पास मी अ रूलर, तो ये क्या किया जाता है, एक रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज़ जब यूज़ करते हैं तो एक रिक्वेस्ट हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट वाला। हाउ डिस्कस्टिंग दिस रोड इज़, कितना रोड कैसे डिस्कस्टिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, जब भी ये वाला मार्क लग जाए ना, ये वाला बस इतना याद रख लो, वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ये हमारे आंसर देखो आसान है, बस समझने वाला है। जब क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो वो इंटेरोगेटिव हो जाता है, और जब इस तरीके का मार्क लगा होता है तो वो कैसा हो जाता है, एक्जामिनेटर। और क्वेश्चन को रीड करो प्लीज़, अगर कुछ दिया हो तो रिक्वेस्ट हो जाता है, और कुछ कहा हो लेट गो, ऐसे ऑर्डर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, कमांड हो जाता है। उसके बाद अब लिटरेचर का पार्ट आता है, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, इसे रीड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले, मृदु crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and the broccoli, his eyebrow jutting out and her eye glazed with the concentration. In front of her, with the most of his back in the window, was bony figure on the music master. He had a mostly bland head with his fin to the oil backed, her falling around his ear and old fashioned turned. A gold chain gleamed around his leathery neck and diamond ring glitter on his hand as it glinted up down and the stem to the violin. A large foot stuck out from the brim his old gold bordered vesty and as he was beating time on the floor with the scarve toy. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए, इनको रीड करते हैं, उसके बाद इनके आंसर हम इकट्ठे ही देखेंगे। मृदु crept up to the dash. Lali was sitting with
हालांकि इनके क्वेश्चन यहाँ पे हैं बट मैं इकट्ठे इनके आंसर्स लिखवा देती हूँ। विच ऑर्नामेंटल वर वोन बाय द म्यूजिक मास्टर, द मास्टर ग्लीम्ड इन द अबव पैसेज मीन, द स्टेटमेंट बतानी है द म्यूजिक मास्टर हा थिक ब्लैक हेयर ऑन हिज हेड। तो इनके इकट्ठे ही आंसर्स देखते हैं हम सभी क्वेश्चंस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखते हैं, देखो मृदु क्रेप्ट अप इनटू द विंडो, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड, लाली वाज सिटिंग विद हर वायलिन एंड ब्रोस्टिंग, देखो पैराग्राफ में से आंसर है बट मैंने यहाँ इकट्ठे लिख दिया। द ऑर्नामेंट वोन बाय द म्यूजिक मास्टर वर गोल्ड चेन अराउंड हिज नेक एंड डायमंड रिंग विद हिज हैंड। द फोर्थ देखते हैं, द वर्ड ग्लिम्ड मीन शो ब्राइटली एंड ग्लोड, जो फिफ्थ है उसका आंसर हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ एक स्नाजो दिया गया है जिसे रीड करना है। देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 क्रैकर पैन ऑन ग्लास, आई ऑफन थिंक देयर आर सम वन स्टार्टिंग एट मी, ईच टाइम दैट आई पास आई विल पीप थ्रू द विंडो वन डे। यहाँ पे क्वेश्चन है, उनको रीड करते हैं। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द विंडो, किस तरह से विंडो को डिस्क्राइब किया है। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द प्लेस, क्या सोचता है पोएट प्लेस के बारे में। व्हाट डज द स्पीकर प्लान टू डू वन डे, क्या है उसका स्पीकर का प्लान। तो आइए देखते हैं इन तीनों के ये आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोएट डिस्क्राइब द विंडो एज ए डस्टी ओल्ड विंडो विद द 3 क्रैक ऑन पैन ऑफ ग्लास। सेकंड का देखिए, द पोएट थिंक दैट देयर आर सम वन स्टेयरिंग एट हिम फ्रॉम द शेड ईच टाइम ही पास बाय। थर्ड का देखिए, द स्पीकर प्लान टू पीप थ्रू द विंडो वन डे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे हमारे पास में 5 क्वेश्चन है जिसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं। हम तीनों क्वेश्चन को साथ में रीड करेंगे और उसके बाद में उनके आंसर्स देखेंगे। देखो, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर द 3 क्वेश्चन, क्यों जानना चाहता था। व्हाई डिड द वांट टू नो 3 क्वेश्चन के आंसर क्यों जानना चाहता था। व्हाई डू यू थिंक ग्रोन अप सेज टू काइंड द थिंग्स मेंशन इन द पोएम, इट इज इंपॉर्टेंट दैट टीच द चिल्ड्रन गुड मैनर एंड हाउ दे बिहेव इन पब्लिक। क्या है, किस तरह से हम सिखा सकते हैं कि बच्चों के लिए अच्छे मैनर्स ज़रूरी हैं और वो किस तरह से वहाँ बिहेव करें। व्हाट इज किंग आस्क्ड गोपाल टू डू प्रूव दैट ही इज वॉज क्लेवर, उसको क्या करना है चाहिए जिससे कि गोपाल को प्रूव कर सके कि वो क्लेवर है। वाई डिड द ऑथर विजिट टू शॉप ऑफ इनफ्रिक्वेंटली, विजिट जो ऑथर है वो शॉप पर क्यों फ्रिक्वेंटली जाता रहता था। वाई डिड द डेमिनो रिवार्ड द फॉर्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट, उसने क्या फॉर्मर को रिवॉर्ड दिया और नेबर को पनिश किया सेम काम के लिए। तो आइए इनके आंसर हम सभी साथ में देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर द 3 क्वेश्चन, द किंग वांटेड टू नो आंसर द 3 क्वेश्चन बिकॉज ही बिलीव दैट ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग ही अंडरटुक इफ ही न्यू द राइट टाइम टू बिगिन टू टास्क, द राइट पीपल टू लिसन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। अगर उसे सब कुछ पता चल जाएगा कि सही टाइम क्या है, सही लोग क्या हैं और सही काम क्या है, तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Why do you think grown-up says to the kind things mentioned in the poem? And it is important. Grown-up says that such things teach children good manner and good behavior. Yes, it is very important because it helps children to learn how to behave respectfully in society, in public, which is a crucial part of their upbringing. देखिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड, आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अच्छे सभी क्लासेस के सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे। व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर, द किंग चैलेंज्ड गोपाल टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग टू द प्लेस विदाउट एनीवन आस्किंग अबाउट हिम। This was a difficult task for everyone in the kingdom was talking about the nothing but hilsa fish at that time. नेक्स्ट देखिए, वाई डिड द ऑथर विजिट टू द शॉप इनफ्रिक्वेंटली, द ऑथर विजिट द शॉप इनफ्रिक्वेंटली बिकॉज द बूट्स मेड ऑन द ग्लेजर ब्रदर वर एक्सपेशनल वेल क्राफ्ट एंड लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयर वॉज नो नीड टू द विजिट ऑफन वाई द बूट्स रियरली वोर आउट। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारे जो ये सैम्पल पेपर है। वाई डिड द डेमोन रिवार्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर टू द सेम डू, द Demio reward the farmer because his act is helpful. The injury dog which is led to the treasure come from the place for genius kindness and the selfishness. He punished the neighbor because his same act was driven by the greedy and jealous. उसने greedy और jealous के लिए किया था and he hurt an animal in process. This intention behind the act matter. तो ये हमारे सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस, अच्छे से तैयारी करिएगा, पैटर्न एग्जैक्ट यही रहने वाला है। थैंक यू गाइज।